ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کا سکون تباہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ کوئی عورت اس وقت تک اللہ اور اس کے آقا علیہ السلام ایک حدیث پوچھتا شوہر اس سے ناراض ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت پر، اس عورت پر کہ جو اس حال میں رات گزار رہی ہے، سو رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو اللہ رب العزت کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام عورتوں سے ان کے شوہروں کے بارے میں، ان کے شوہروں کے حقوق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اے عورتوں، تمہاری سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کو راضی کرو، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کبھی بھی اپنا قدم نہ نکالو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے فرما دی، تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق کو ادا کرتی۔ ایک جنگ سے آئے، جب جنگ سے آپ آئے تو اس جنگ سے آپ کو کچھ مال ملا، کچھ غلام ملے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تنہا ہے، کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، اس کائنات کے سردار میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرتا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ کام کرتی ہے، تنہا ہے، اکیلی ہے، کام کاج کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی بھی رہتی ہیں، بہت مشقتیں اور پریشانیاں اٹھاتی ہیں، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں کبھی بھی لو پر ذرہ برابر کی شکایت نہیں آتی ہے، کبھی بھی لو پر ذرہ برابر کی کوئی پریشانی کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کسی بڑی چیز کی فرمائش نہیں کرتی ہیں، کسی بڑی چیز کے بارے میں ڈیمانڈ نہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت یعنی ایک خادمہ ہے، تم بھی چلی جاؤ اور اپنے بابا جان سے خادمہ لے آؤ تاکہ وہ کام کرنے میں تمہارا ہاتھ بٹائے، اور تم کو جو پریشانی ہوتی ہے کام کرنے میں، تمہارے جو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تاکہ جب وہ تمہارا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسرال میں جا کر کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اگر تمہاری سسرال میں کوئی تم سے کچھ کہے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جو باپ اس طریقے سے اپنی بیٹی سے کہتا ہے تو یقین کیجئے باپ نے یہاں اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے نے یہ کہا، سمجھ لو اس کی بیٹی کا گھر تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا۔ اگر آج ہم اسی طریقے سے اپنے ماحول کو رکھیں گے، اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر بھیجیں گے کہ بیٹی سسرال میں جا کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے بلکہ اس کے گھر برباد کرنے کا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ آخرکار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم پیارے آقا علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں، جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ فاطمہ اکیلی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے کہ میرے آقا نے دیکھا فاطمہ اکیلی ہے، علی نہیں آئے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کان کھول کر سنیں آپ حضرات، میرے آقا جو کائنات کے سردار ہیں، اپنی بیٹی علیہ السلام جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تنہا آئی ہے، اپنے شوہر علی کو نہیں لائی ہے، پیارے آقا علیہ
वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम अली की इजाजत के बगैर आई हो तो मोहम्मद के घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम अली की इजाजत के बगैर आई हो, कायनात का सरदार मुझे और आपको ये दर्स दे रहा है, मुझे और आपको अपनी बेटियों के बारे में ये शौहर को कभी भी नाराज नहीं करना। बेटी अपने शौहर की कभी भी मर्जी के बगैर उसके घर से नहीं आना, उसके घर से कदम नहीं निकालना। कसम खुदा की मुसलमानों, जब इस तरीके से आप अपनी बेटी को ये कहकर भेजेंगे तो फिर यकीन कीजिए आपकी बेटी का घर बहुत अहम रोल होता है। आज जब माँ बाप की दोनों तरफ से, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, दोनों अपनी तानाशाही दिखाते हैं, अपनी ऊंच नीच में दो बच्चों की जिंदगी दो दिनों के बाद में बोझ बनती हुई नजर आ जाती है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद बेटी से कहकर ना भेजें जिसके जरिए आपके उस कहने से आपकी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। बहरहाल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी हजरत फातिमा अली की इजाजत के बिना आई हो तो मुझ मोहम्मद के घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाहे रिसालत में अर्ज़ करती है, मौला रब्बे कायनात के महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए बाबा जान, तुम्हारी ये लाडली बेटी, तुम्हारी ये प्यारी बेटी फातिमा अपने शौहर अली की इजाजत के बिना नहीं ने मुझको आपके पास भेजा है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सुना तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। खोलने के बाद अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बिठाते हैं। बिठाने के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, ए बेटी फातिमा, अब बताओ। तो सलाम से अर्ज करती हैं, ए बाबा जान, ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझको अली ने भेजा है, मैं घर में तन्हा कामकाज करती हूँ जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ए बाबा जान, अली ने कहा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक खादिमा ले आओ ताकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर का कामकाज कराए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बाबा जान, वो कौन सी चीज है जो खादिमा से भी ज्यादा बेहतर है, जो एक नौकर से ज्यादा बेहतर है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुम उसको बख्शिश फरमा देगा और आने वाली उम्मत में जो जो लोग उस चीज को पढ़ेंगे तो कसम खुदा की फातिमा रब्बे कायनात उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं, मौला के महबूब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या चीज है? तो हजरत बोलते हैं 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा को अल्लाह के रसूल ने उस वक्त ये तस्बीह अता फरमाई हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सदक़े में आने वाली हर उस शख्स की बख्शिश फरमा देगा जो इस तस्बीह को पढ़ेगा। तो हजरत, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तरीका बताया और से तुम्हारा रब भी नाराज हो जाएगा और तुम्हारे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाराज हो जाएंगे। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब्बे कायनात के महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए लोगों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम अपने महबूब की जिंदगी पर चलोगे, अपने महबूब की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, अपने घरों में अपने महबूब की सीरत को लेकर आओगे, तो फिर तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घरों का जो सुकून तबाह बर्बाद हो चुका है, आज भी तुम्हारे घरों में सुकून वापस आ जाएगा और तुम्हारे घर जन्नत के टुकड़े बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने घरों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये औरत को बताया है कि औरत पर कितने हुकूक हैं, मर्द के, शौहर के कितने हुकूक हैं। तो में अच्छा माहौल बनाएं और अपनी बीवियों को इज्जत की नजरों से देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने घरों में जो मेरे आका अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम ने तरीका हमें बताया है, उस तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। एक मरतबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान की सरहद से अजमेर शरीफ आए, हिंदुस्तान की सरहद से अजमेर शरीफ आने तक ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ा दिया, यानी 5 लाख लोगों को इस्लाम में दाखिल फरमा दिया, उन्हें मुसलमान कर दिया। अब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, आप बहुत खुश हैं। हज़रत अपनी वालिदा मोहतरमा को चिट्ठी लिखते हैं और उनसे कहते हैं, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान, और लोग मेरी सूरत को देखते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो हजरत आप भी सुने और मेरी माँ बहनें भी सुने और अपना किरदार, अपने आमाल इस तरीके से बनाएं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा आपसे कहती हैं कि ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसमें कमाल है तो मेरा है। इसलिए कि ए मोइनुद्दीन, मैंने आज तक तुम्हें जब भी दूध पिलाया, कभी भी बिना वुज़ू के तुम्हें दूध नहीं पिलाया। मैं जब भी तुम्हें दूध पिलाती थी, बावुज़ू होकर तुम्हें दूध पिलाती थी। आज हमारे घरों का माहौल ये है, हम टीवी और सीरियल देखते रहते हैं और अपने बच्चों को अपनी गोदों में लिए रहते हैं, जिसका नतीजा बड़े होकर ये मिलता है कि यही बेटा, यही बेटी हमें गालियां बकते हुए नजर आते हैं। ये इसका तरीका ये है, इसलिए कि हमने अपने आका के तरीके को छोड़ दिया है। हम अरब के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो दीन जीने का तरीका, वो क्या कहते हैं कि तावीज़ बना दो। मौलाना साहब तावीज़ बना दीजिए कि हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया है। ये बिगड़ने में, औलाद के बिगड़ने में माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है। इसलिए कि अगर बचपन से उसको अच्छे तरीके से परवरिश करोगे, तरबियत दोगे, तो यकीन कीजिए आपका बेटा कभी भी, आपका बच्चा कभी भी आपके सामने ज़बान नहीं चलाएगा, हर वक्त वो आपका अदब करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाएं और इस चमकन वाल दूल्हे राजा के।
दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे सुन सजना के तेरे प्यार में दिल डूबा लबों पे तेरा नाम आवे हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे शुक्र
दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी ओए मैं वारी जावा चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रंग में